The type of function can be classified into four categories on the basis of argument and the return value. The type of function part first one, function with no arguments and no return value is the first category. Second, function with no argument but can have return value, that has to be highlighted. Next, the third type is function with argument but no return value. The final one, function with both argument and return value, तो both are available. So हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, we have to just understand कि the function can be categorized into four types according to the two parameters. Which are the two parameters? First one is the argument, and the next one is the return values. On the basis of that, there are four categorization: no argument, no return value; no argument but we have a return value. Here we have a argument but no return value. The last one with argument and with return value. So we will further understand each of this type with an example, so it will be easy for us for understanding. Okay, starting with the first category, function with no argument and no return value. When a function has no argument, it does not receive any data from a calling function. Similarly, that function do not require to transfer any value to the called function. समझ में आया? We'll see a example. यहाँ पे example चेक करते हैं. Example, void function func void indicate what? It indicate that, मैंने ऊपर से लिखा, indicate data type is void मतलब no return value or no return type. Void in the parameter indicate it has the parameter list is empty. Suppose there is a main function. In the main function we are calling the function. This is the function call. The function call, if you see, there is no argument in the function call. So this is without a function, no argument call. When the function is called, it is in the definition you can find it also defining no data type and no argument. It will perform some task and then it return back to the call function. After performing it, it will return back to the call function. This is the first category of the function. This is the first category of the function with no argument and no return value. We have two examples from which we will be able to understand it easily. Let's go for the first example. To write a program to draw a line. So first the header required for the program, then a definition. What this indicate? It indicates the function definition. In function definition, if you highlight, void indicate no data type, no return data type, and another void in the parameter list indicate no parameters are required for this function as an argument, and the function name is draw line. Main, then I just call in the main, I am just calling a function called as draw line. So this is a function call. This is a function call. Whenever the function call occurs, the control will be transferred from main function to the draw line function, where the draw line function header indicates it is not accepting any input return data type, and also no arguments are required. Inside the function, the draw, as we are going to draw a line, what we have done, we are just taking a variable int I, for loop where I is equal to 1, I is less than 80 and I plus plus. What will happen? We are just printing one
dash. Okay, so it will be repeatedly for 80 times and you will see it as a single line. What we have to just ensure over here that the function call is not passing any argument, मतलब there is no actual parameter, and even in function definition no actual parameter, and even in function definition no formal parameters. In the function definition also there is no written value. There is no written value. When this line is executed, मतलब output कैसा आएगा, एक single line आएगा. After the line is been drawn, the control will be transferred back to the calling function with no value required. मतलब काम कहाँ पे हो रहा है, function के definition के अंदर ही. This category is called as a function with no argument and no written. Okay, we will look after one more example where the program is used to display a menu. Now you will understand the use of function. As you know that many a times you want to display a menu or a chart in front of user where he will select an option out of that, and after selecting option you will perform a certain task. Like example, suppose I want user to create a database, then he has the option for deleting a database, appending a database, creating a new records in a database, or appending a records into the database. So this menu should be repeatedly executed. So why not remove that part of the code and make it as a function, as a display menu function. So whenever required, I will call that function. It will display the menu. So whatever action is selected, that action will be taken care and then it will be executed separately. So this is where the use of the functions can be seen. So see the program to display the menu. So start a program to display the menu. First I am adding a header. Then the second statement is a function definition. I am defining a function, again a void display menu is the function name, and void indicate no return data type and no argument. That is first category. Then we have a main function. Inside a main function I check have variable choice, you can take anything. Then I am calling a function. Here the function call is initiated. Whenever the function call is initiated, it will jump from main menu and try to go to the function and try to find a function inside the program. अपने प्रोग्राम में वो फंक्शन ढूंढेगा डिस्प्ले मेनू नाम का, अरे मिल गया. सो दिस इज अ फंक्शन मेनू. अगर ये फंक्शन मेनू उसको मिल गया, अगेन इट इज़ नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट. अगर अपने ध्यान देकर रहेगा, नो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, नो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन पास. इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, नथिंग बट दे आर जस्ट डिस्प्लेइंग द 5 ऑप्शन: क्रिएट डेटाबेस, इंसर्ट डेटाबेस, मॉडिफाई डेटाबेस, डिलीट अ रिकॉर्ड एंड एग्जिट. ये डिस्प्ले होगा, ये रन होगा, ये पूरा बॉडी रन होगा. आउटपुट प्रिंट एफ है, इसके लिए बाहर डिस्प्ले होगा. ये एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूट कंप्लीट होने के बाद इट विल कम बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. कॉलिंग फंक्शन में आएगा, ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गया, ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गया. नाउ विल रन द नेक्स्ट लाइन, एंटर द चॉइस, और फिर यूज़र 1 2 3 4 5 में से कोई तो एक चॉइस एंटर कर देगा. समझ में आया फंक्शन. दो देर आर टाइप ऑफ फंक्शन वेयर यू डू नॉट रिक्वायर एनी आर्ग्यूमेंट और अ रिटर्न वैल्यू, होता है ऐसा. दिस काइंड ऑफ फंक्शन आर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फंक्शन. अभी हम लोग नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू. उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना. 2 एग्जाम्पल, एग्जाम नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 जो एक्सप्लेन करते हैं. फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू. The function with no argument but a return value do not receive any argument but they can return a value. They do not receive any argument but they can return the value. We'll see with an first structure and then with an example. So here is a structure which shows that example. Suppose int function void semicolon. This is a function declaration. Now you see that over here int indicate that this function function C, that is the function name, will return a value which can be of type integer. It is not compulsory that it has to return a value, but if it return a value it will be of data type integer. Main, then the declaration int x can be anything. X is equal to function x. Why we are doing this? As we know that this is the function call.
whenever the function call is executed, the function will transfer a control to the called function. That is, it will do some task. After doing some task, it will return some expression value, and that will be of type integer because this function is returning data type is integer. This expression, this is returning some value. That value will be passed to this x. That value will be passed and stored in x. That is the intention. So x is equal to function s is written for what reason? Whenever that function get called, it will get executed wherever the function is written in the program. After the execution, the return function will transfer a control, and the value of the transfer, that the return value, is stored in x. That is what the, and then you can use that x in for further reason. समझ में आया? सिंपल है ना. फंक्शन जो कॉल होगा वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं. हमेशा याद रखो, फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर रखो. क्या कंसेप्ट है? फंक्शन कॉल होता है मतलब क्या, वो फंक्शन नेम FUNC अपने पूरे प्रोग्राम में स्कैन करके सर्च करता है कहाँ पे फंक्शन, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो प्रोग्राम के अंदर ही 100% रहेगा. तो जब भी उसको कोई फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करता है, उसके अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, उस बॉडी के सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है. और अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो रिटर्न के अंदर जो कुछ एक्सप्रेशन लिखा रहेगा उस एक्सप्रेशन को एज ए वैल्यू रिटर्न करता है टू द कॉल्ड फंक्शन. मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आपने ये लिखा, मतलब मेन फंक्शन से ये फंक्शन ही कॉल हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद वापस किसके बाद मेन फंक्शन में आएगा और वही लाइन पे आएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल जनरेट हुआ था, और वो वैल्यू किसको पास करेगा? एक्स को. समझ में? यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के आने के बाद जो वैल्यू आया ना उसके अंदर, तो किसको दे देगा? वेरिएबल एक्स को देगा. एग्जाम्पल देखते तो और अच्छे से समझ में आएगा. अभी एक ध्यान रखो, प्रोग्राम भी है और एग्जाम्पल भी, दोनों भी हो जाएगा. क्या प्रोग्राम है देखो, राइट अ प्रोग्राम टू दैट रिटर्न अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 25. मतलब 1 to 25 के बीच में जितने ऑड नंबर है वो उनका स्क्वायर और उनका समेशन, मतलब टोटल कितने टास्क हैं वो ध्यान में रखने का. टोटल कितने टास्क हैं हमारे पास? वी हैव 3 टास्क. पहला, द नंबर शुड बी ऑड बिटवीन 1 to 25. वो तो हमको निकालने आता है. कैसे कर सकते हैं? इफ़ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 एंड नॉट इक्वल टू 0. कर सकते हैं, इतना सिंपल. अगर 0 डिवाइड बाई 2 है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो ऑड नंबर है. सेकेंड काम क्या है? उनका स्क्वायर, मतलब जो नंबर सिलेक्ट हुआ उसका स्क्वायर फंक्शन यूज़ करने से 2 बार मल्टीप्लिकेशन करो. एंड थर्ड काम क्या है? उसका समेशन, मतलब ये जो आंसर आया किसमें उसको वापस समेशन करना है. देखते हैं, मतलब 3 टास्क है, मतलब टोटल 3 टास्क है. पहला टास्क है आपका, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग ऑड नंबर. सेकेंड, if the number is found, do the multiplication of that number to get the square, and then that number is get added with the sum. ऐसा उन नंबर्स का अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करके समेशन करना है. अभी प्रोग्राम देखते कैसे. I start with the program hash include std.h. Then the first statement that we are doing is we are just declaring the function. अभी यहाँ पे फंक्शन देखो वही नाम यूज़ किया है. यहाँ पे फंक्शन का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. मतलब ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कौन सा डेटा टाइप है? रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप. वॉइड मतलब नो आर्ग्यूमेंट. ये फंक्शन को कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, नल आर्ग्यूमेंट चाहिए. मेन के अंदर आ गया, मेन के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ABC. फाइन. ABC इज इक्वल टू फंक्शन सी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? फंक्शन कॉल जनरेट हुआ. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं, फंक्शन कॉल हुआ ना, द कंट्रोल विल गेट ट्रांसफर टू द, वो अपने पूरे प्रोग्राम में सर्च करने की कोशिश करेगा कि फंक्शन सी कहाँ पे, अरे है यहाँ पे कंटिन्यू में, तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे? द कंट्रोल विल गेट ट्रांसफर टू फंक्शन FC नाम का जो फंक्शन है उधर. वहाँ पे वापस डेटा टाइप इंट, फंक्शन नेम एंड वॉइड. अरे मैच हुआ, फंक्शन कॉल ने जिसको ढूंढा था वो यही है. इंट बॉडी के अंदर आया, इंट आई एम डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल नम एंड s इज इक्वल टू 0. ये समेशन भी चाहिए ना ये. अभी लॉजिक देखो क्या है. सम इज इक्वल टू 1 टिल सम इज इक्वल टू 25. 1 to 25 चाहिए. इंक्रीमेंट, वो फॉर लूप के अंदर आने के बाद क्या चेक कर रहा है? इफ़ द नंबर इज़ लेस देन और इक्वल
डिवाइडेड बाय 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है मतलब वो नंबर क्या है, ऑड है। इक्वल टू 0 है मतलब इवन है। तो ऑड है तो क्या करेगा, नम इंटू नम, क्योंकि नम यही नंबर अंदर आएगा ना, बाकी कोई नहीं आएगा। 1 अंदर आएगा, 1 इंटू 1 1। समेशन का पहले क्या है 0, तो 0 प्लस 1 1 स्टोर होगा एस के अंदर। वापस फॉर लूप में जाएगा, 2 अंदर जाएगा क्या, नहीं, 3 अंदर जाएगा 3 इंटू 3 6, फिर क्या होगा 1 प्लस 6, देन एस इज इक्वल टू 7। ऐसा ये रिपीटिंग प्रोसेस में रहेगा। ये कंप्लीट होने के बाद जब ये 26 हो जाएगा, द लूप विल ब्रेक एंड इट विल कम आउट, लूप विल ब्रेक एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड द लास्ट स्टेटमेंट दैट आई एम राइटिंग इज रिटर्न एस, क्योंकि एस के अंदर क्या है, समेशन। अभी ये एस कहाँ पे जाएगा, जिसने मुझे कॉल किया था उसको ये एस का वैल्यू दे। मुझे एस के अंदर कुछ तो वैल्यू आएगा, अगर समेशन हुआ रहेगा, वो एस का वैल्यू किसको देना है, रिटर्न एस मतलब क्या, जिसने मुझे कॉल किया था, द कॉल्ड फंक्शन, जिधर से कॉलिंग फंक्शन हुआ था वहाँ पे जाके ये वैल्यू उसको रिटर्न दे देना। मतलब वो कहाँ पे जाएगा, हम लोग वापस जाते हैं, मतलब ये रिटर्न फंक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अरे इसमें ये लाइन पे कॉल हुआ था, इधर कॉल हुआ था, तो उस फंक्शन को वो वैल्यू दे देगा। वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, ये फंक्शन वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, ए बी सी के अंदर। समझ में, ए बी सी क्या करेगा, तो नाउ द वैल्यू ऑफ एस इज स्टोर्ड इन ए बी सी। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट ए बी सी, तो वाला अपना प्रिंट हो जाएगा। अगर आप आउटपुट कैलकुलेट करोगे तो इसी सम 29 ऐसा कुछ तो आएगा वैल्यू, 2925, चेक कर लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना। ओके, एकदम इजी है ना। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 3। तो टास्क डिवाइड करने का 3 टास्क थे, 1 फाइंडिंग द ऑड नंबर, फिर सेकेंड टास्क स्क्वायर, तो ये हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर किया, थर्ड टास्क समेशन, तो उसी लाइन में समेशन भी कर दिया। इजी है। और हम लोगों ने एक टाइप भी देख लिया, कौन सा वाला टाइप, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड बट अ रिटर्न वैल्यू। अभी यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कौन सा है, ये वाला हमारा रिटर्न वैल्यू है, जो कि जिधर से कॉल हुआ था उसको जाके कुछ वैल्यू पास ऑन करेगा। पहले वाले एग्जांपल में कुछ भी पास ऑन नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर ही सब कुछ हो रहा था, बॉडी के अंदर ही प्रिंटफ स्टेटमेंट था। यहाँ पे है क्या, नहीं है। सर हम लोग इस फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, हाँ, यहाँ पे रिटर्न एस की जगह पे क्या लिखो, प्रिंटफ एस कर दो, तो ज़रूरत है क्या, वापस वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, वापस मेन में चला जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया। ओके, वी स्टार्ट विद द थर्ड वन। वी सी द थर्ड टाइप ऑफ द फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। दिस टाइप ऑफ फंक्शन हैव आर्ग्यूमेंट, हेंस द कॉलिंग फंक्शन can send data to the called function, but called function does not return any value. We'll understand through a structure and then we'll go with an example. Over here we have a void indicate the function is not going to return anything, but the parameter list indicate it will take 2 parameter. Now understand, if the function is asking for 2 parameter, so while writing a function call, we have to ensure that it will also pass 2 parameters. Otherwise, the function will not get executed and it will give an error. तो जितने पैरामीटर्स आप फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में लिख रहे हो, इंश्योर करो कि फंक्शन कॉल के टाइम हम लोग उतने सारे पैरामीटर पास करेंगे। मतलब क्या, देखते। तो आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन विद अ फंक्शन नेम, मेन में आ गए, कुछ तो स्टेटमेंट लिखा, फिर यहाँ पे मैंने जो किया दैट इज अगेन अ फंक्शन कॉल। अभी फंक्शन कॉल किया तभी ए कॉमा बी, अभी यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा है क्या, नहीं लिखा, क्यों, रिटर्न डेटा टाइप नहीं है, कुछ रिटर्न वैल्यू करेगा नहीं, तो इसके लिए करेगा नहीं, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट होना है। इतना याद रखो, जब भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है ना, मतलब वो फंक्शन के अंदर सब काम कंप्लीट करके आपको आके सिर्फ बोलेगा एग्जीक्यूटेड द फंक्शन। जब भी रिटर्न टाइप रहेगा मतलब क्या, एग्जीक्यूटेड द फंक्शन एंड आई गॉट दिस आउटपुट। तो याद रखो, जब भी हमको कोई फंक्शन से कोई रिटर्न वैल्यू चाहिए तभी हम लोग रिटर्न डेटा टाइप लिखेंगे। जब भी हमको फंक्शन के अंदर ही काम करना है तभी हम लोग फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, वॉइड लिख देंगे। समझ में। तो क्वेश्चन आता है ना सर, कभी यूज़ करेंगे हम लोग ये टाइप, जब भी आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है
तो गो फॉर अ void data type which says that the function is not going to return anything. अगर आपका कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद वैल्यू आने वाला है और वो वैल्यू आप कोई दूसरे फंक्शन में यूज़ करने वाले हो या मेन फंक्शन में यूज़ करने वाले हो, तभी आपको चाहिए ना, मुझे मैंने क्वेश्चन पूछा आपको एक्सप्लेन 2+2 कितना होता है, तो आपने कैलकुलेट किया और अपने पास ही रखा क्या? नहीं, आपने मुझे भेजा ना, वाई बिकॉज द कॉलिंग फंक्शन, मैं कॉलिंग फंक्शन हूँ ना, I have expected you to calculate the sum and give back to me. पर अगर आपने रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा, राइट योर रोल नंबर ऑन द पेपर, आपको मुझे आपका रोल नंबर बताने की ज़रूरत है कि नहीं? आप सिर्फ क्या करोगे, आपका रोल नंबर अपने पेपर पे लिख दोगे। मतलब मैंने जब ये एक्शन बोला राइट योर रोल नंबर ऑन द पेपर इज द फंक्शन, वो फंक्शन आपके दिमाग में कॉल हुआ, आपने अपना रोल नंबर पेपर पे लिख दिया और चुप बैठ गए। हैव यू इन्फॉर्म मी कि मेरा रोल नंबर ये है? नहीं। +2 कितना होता है? आपने रिप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे मुझे रिटर्न टाइप चाहिए था। तो जब भी ज़रूरत होती है तभी यूज़ करो, जब भी नहीं है तभी फाइन। अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितने हैं? 2। तो हमेशा अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ तो 2 है। प्लीज़ टेल योर रोल नंबर एंड नेम, प्लीज़ राइट योर रोल नंबर एंड नेम ऑन द पेपर। मैंने आपको कितने आर्ग्यूमेंट पास किए? 2। तो आपको भी वो 2 यूटिलाइज करते हैं। पर आपको हमेशा अगर ऐसा कुछ है, अभी आप ATM पिन शुड बी ऑफ 4 डिजिट, अगर आप 4 डिजिट एंटर करोगे तो ही वो फंक्शन एक्टिवेट होगा ना, वैसे ही है। अगर कोई फंक्शन 4 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 10 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है तो अपने को वो उतने आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत होती है, ध्यान में रखने का। तो यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शन ने कितने आर्ग्यूमेंट पास किए? 2 आर्ग्यूमेंट पास किए। तो अगर कॉलिंग फंक्शन ने जैसे आर्ग्यूमेंट पास किए तो कॉलिंग फंक्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वो हेडर देखा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं, काम खत्म होने के बाद इट जंप टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन कॉल, क्योंकि हो गया आपका कॉल कंप्लीट करके हो गया। अब नेक्स्ट बोलो क्या है, समझ में? आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द 4th टाइप, द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे द कॉलिंग फंक्शन विल पास सम वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट पास करेगा, एंड द कॉल्ड फंक्शन विल ऑल्सो रिटर्न सम वैल्यू। स्ट्रक्चर देखो अभी यहाँ पर, इंट मतलब डेटा टाइप, रिटर्न में कुछ तो आएगा, क्या आएगा? इंटीजर डेटा टाइप। फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है, कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? 2। यहाँ पे गलती हो गया, इट कैन बी ओके। मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन का कोई वेरिएबल है। अभी देखो ABC इज इक्वल टू फंक्शन, क्यों ऐसा किया? क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कॉल्ड फंक्शन है ये कॉल फंक्शन के पास जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न वैल्यू जो एग्जीक्यूट होगा वो वापस कहाँ पे स्टोर कर देगा? यहाँ पे कर देगा। समझ में आ? तो रिटर्न भी कर रहा है और पैरामीटर लिस्ट भी ले रहा है। और एक टाइप है देखो, अभी यहाँ पे आपने किसी वेरिएबल को नहीं लिखा आगे, सिर्फ फंक्शन को कॉल किया, तो रिटर्न जो वैल्यू आया वो क्या हुआ? नहीं चाहिए आपको। इसका मतलब कि आपको उसको एग्जीक्यूट करने का था, आपको उसका वैल्यू नहीं चाहिए, चलेगा, ऐसा भी कर सकते हो। तो ऐसा हमेशा रूल नहीं कि रिटर्न डेटा टाइप बोला तो उसको वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल में लेना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी, इट इज़ ऑप्शनल। अभी यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया पर मैंने उसका वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया, चलेगा, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, समझ में? तो यहाँ पे भी वो फंक्शन कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न भी करेगा, पर यहाँ पर वो रिटर्न वैल्यू का हैंडलर नहीं है। हैंडलर मतलब जो वैल्यू एक्सेप्ट करके रखेगा ना, वो नहीं है, चलेगा ऐसे, हाँ होता है ऐसे, आपको पता होना चाहिए। मैं दोनों का एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम एग्जांपल है। अगर यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप निकाल दिया तो क्या होगा? दिस इज़ द फंक्शन टू कैलकुलेट द दिस इज़ द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। यूज़र से इनपुट लेंगे, अभी मैथ फंक्शन यूज़ होगा, इसके लिए हम लोगों ने 2 हेडर यूज़ किया। वॉइड एरिया ऑफ द ट्राइंगल डबल डबल डबल। आपने बोला सर यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, चलेगा, दैट आर द डमी आर्ग्यूमेंट्स है ना, पर यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? वी रिक्वायर टू हैव 3 आर्ग्यूमेंट्स ऑफ विच डेटा टाइप? डबल डेटा टाइप। आप इंट पास करोगे या फिर दूसरा कुछ पास करोगे तो लेगा क्या? कैर पास करोगे तो लेगा क्या? नहीं लेगा, समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये अपना कंप्लीट हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन। अंदर गए मेन के अंदर, अभी इंट मेन लिखा है, मतलब ये मेन फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, वॉइड लिखा तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आया मेन डबल ABC एंड एरिया, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ABC एंड एरिया। एंटर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, यूज़र को बोला एंटर, यूज़र एंटर करेगा, डबल एस के लिए LF इंटर करेगा ABC के अंदर। अभी मैंने देखो क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया
विथ 3 पैरामीटर ए बी सी जो यूज़र ने एंटर किया हुआ। दे आर ऑफ डबल टाइप, यस मैंने ए बी सी को देखो क्या डिक्लेयर किया है, डबल डिक्लेयर किया, तो दे आर ऑफ टाइप डबल। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से कंट्रोल बाहर आएगा एंड द कंट्रोल विल गो टू द सर्च फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल फंक्शन। मिल गया क्या? अरे हाँ मिल गया। वॉइड लिखा मतलब नो डेटा टाइप, डबल ए डबल बी यहाँ पे दिखा। अब बोले सर डिक्लेरेशन में नहीं लिखा, वो फंक्शन डेफिनेशन में लिखा है, चलेगा। क्यों? मैंने फंक्शन डेफिनेशन में उस वेरिएबल डिफाइन किया, इंट ए बी सी करते हैं ना, वैसे मैंने डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया, तो मुझे अंदर ए बी सी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। सो और एक क्वेश्चन, सर ए बी सी आपने यहाँ पे भी यूज़ किया और इस फंक्शन के अंदर भी ए बी सी यूज़ कर रहे हैं, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। ये ए बी सी सिर्फ ये फंक्शन के अंदर वैलिड है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल डिक्लेरेशन। और ये ए बी सी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो भी सिर्फ ये एरिया के अंदर ही वैलिड है, बाहर नहीं वैलिड है, तो चलेगा। तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, डबल एस एरिया, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जो एरिया कैलकुलेट होगा मेरे को रिटर्न नहीं करना है ना, क्योंकि वॉइड है लिखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पे एरिया प्रिंट कर दूंगा। तो जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया उस फंक्शन ने कॉल करके एरिया को प्रिंट कर दिया। प्रिंट होने के बाद ये कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, रिटर्न 0 करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फाइन। अगर सेम मैं बोलता हूँ विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू है तो कैसा आएगा? देखो सेम प्रोग्राम विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, मतलब रिटर्न वैल्यू क्या ले रहा है? डबल। आर्ग्यूमेंट कितने हैं? 3, मतलब ये रिटर्न भी करेगा और आर्ग्यूमेंट भी है, विद आर्ग्यूमेंट विद 4th टाइप है। बाकी सब सेम है। अभी यहाँ पे देखो एरिया इज इक्वल टू, मतलब जो रिटर्न करेगा वैल्यू कहाँ पे स्टोर कर दिया हम लोग ने? एरिया। ये जब भी लाइन एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्रोग्राम टू दिस प्रोग्राम। यहाँ पे आ जाएगा, डबल लिखा मतलब रिटर्न करेगा ए बी सी, जो भी वैल्यू आएगा वो ए बी सी, डबल ए डबल बी एंड डबल सी के अंदर ले लेगा। एरिया कैलकुलेट करेगा, रिटर्न करेगा क्योंकि रिटर्न डेटा टाइप है। रिटर्न करने के बाद वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? इट विल स्टोर इन ए, इट विल स्टोर इन ए। और ए में स्टोर होने के बाद इट विल प्रिंट द वैल्यू एंड द वैल्यू इज प्रिंटेड एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज बीइंग कैलकुलेटेड। समझ में ईजी है ना? तो 4 टाइप हम लोग ने देखे, फंक्शन विथ रिटर्न, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ, सेकेंड वाला देखा द फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। समझ में आया? क्लियर है? अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग फंक्शंस के, एंड देन विल जंप ऑन टू द कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता है, पॉइंटर लगता है उसके लिए, तो कॉल बाय वैल्यू कैसे होता है फंक्शन में हम लोग वो ट्राई करेंगे। फाइन। मूविंग अहेड विल टेक एग्जांपल ऑफ द फंक्शन, विल डू 2 program, actually it is a single program but it can be asked in reverse direction, so we are doing 2 programs. Starting with example number 1, write a program to find the reverse of a number. Example, if any given number, suppose user is entering 104, the output should be 10401. That is what expected in the program. Okay, so the program starts with, and it is using function, the declaration of the header, the first line, that is the function declaration. We are using a function called as reverse, which will take an input as one parameter of integer type, where the variable name, that the formal argument is 1. See, now I am talking in a complete technical manner of a function. Int matlab the reverse function will return a value of data type integer, and it will take one parameter, that is of data type integer, as an input. So whichever function want to call the reverse should pass at least one value. Void main indicates the return value, no return value for the main function. Int number CLR, print, enter the number. User will enter the number which will get stored in num, the variable that we are using. Now see, instead of using I will just write it again. Instead of using the variable and storing the output
because the function is going to return a value, the output will be stored in variable and then we'll print that variable. Instead of that we can directly write it as a parameter for the printf statement. Reverse of a number is %d क्योंकि इंटीजर है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिवर्स नम लिख सकते हैं. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव रिटर्न द फंक्शन कॉल इन printf पैरामीटर ओनली एज अ printf पैरामीटर. मतलब क्या होगा, printf जब भी जाएगा, परसेंटेज जब भी कॉल होगा वो ये वैल्यू लेता है ना, ये वैल्यू लेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा. ये फंक्शन जब भी कॉल होगा इट विल ट्राई टू फाइंड अ प्रोग्राम इनटू द रिवर्स नाम का. तो मिल गया नम जो यूज़र ने एंटर किया. सपोज अपने केस में यूज़र ने एंटर किया 4104 एंटर किया, वो इन कहाँ पे जाएगा, इंट n में जाएगा. क्लियर है, समझ में? तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली पास द फंक्शन एज द पैरामीटर ऑफ अ printf स्टेटमेंट. ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा. उसके बाद क्या हुआ, व्हेन यू कम बैक इनटू द रिवर्स, यहाँ पे आ गए. यहाँ पे आपका आके क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा अभी तक, अभी सिर्फ वो %d का वैल्यू निकालने के लिए गया. यहाँ पे आया, रिवर्स वेरिएबल डिक्लेयर किया वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0. हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई 10 करेंगे. दिस इज़ अ लॉजिक, यू कैन फाइंड इट आउट. ये होने के बाद वो रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न द क्यों डिवाइड. अब आप लॉजिक समझ लो क्या कर रहा है. हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, ये था 104 है, डिवाइड बाई 10 तो रिमाइंडर 4 आया. 4 को मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर, राइट, वो हम लोगों ने ऐड किया. रिवर्स प्लस रिमाइंडर, रिवर्स का वैल्यू इनिशियल क्या है 0, तो अभी रिवर्स में 4 आ गया. फिर n को डिवाइड बाय 10 किया तो क्या बचा, हाँ तो 10 बचा. तो 10 का वापस रिपीट होते जाएगा जब तक n का वैल्यू 0 से ऊपर. तो ऐसा आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जनरेट 4 आएगा पहले, फिर उसके अंदर 0 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, 401, क्योंकि वो ऐड होते जाएगा. आप करोगे आपको समझ में आएगा. ठीक है. उसके बाद रिटर्न, देखिए क्योंकि अपने को लॉजिक printf इसका सीखना है, फंक्शन का. रिटर्न रिवर्स, तो जब भी रिटर्न होगा ये फंक्शन भाग के आएगा, रिटर्न वैल्यू किसको देगा, अभी %d को, एंड दैट विल गेट प्रिंटेड, समझ में आया, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन. हाँ, अगर आपको यही प्रोग्राम बोला है और किसने प्रोग्राम चेंज किया, चेक वेदर द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. मतलब आपने एंटर किया 444 तो भी पैलिंड्रोम क्या होगा, क्या 101 तो है, राइट. तो पैलिंड्रोम मतलब क्या भी होगा, अभी 104 है क्या, नहीं है. मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट रिवर्स एंड यू हैव टू चेक द रिवर्स वैल्यू इज इक्वल टू द यूज़र एंटर्ड वैल्यू. विट इज़ यूज़र एंटर वैल्यू, तो वो पैलिंड्रोम है या तो नहीं है. मतलब सेम प्रोग्राम रखो, सिर्फ मेन फंक्शन में क्या लिखो, इफ़ नम यूज़र ने एंटर किया इज़ इक्वल टू फंक्शन कॉल होगा. यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न आएगा वो कंपेयर किया जाएगा नाम से. इफ़ द वैल्यू इज़ सेम, प्रिंट यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम, इफ़ नॉट इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम. मतलब सब सेम ही रहेगा, आपका फंक्शन भी सेम रहेगा, आपका ये फंक्शन भी सेम रहेगा. आपको सिर्फ ये printf स्टेटमेंट की जगह पे ये वाला पार्ट ऐड कर देना है और आपका क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हो जाएगा. तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग कोई. अभी आपको और फंक्शन रिवर्स का भी एक ही प्रोग्राम लिखा मैंने जिसके अंदर मेरे 2 मल्टीपल फंक्शन हो गए. क्लियर, बाय कॉलिंग मुझे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. समझ में आया फंक्शंस, पक्का, ओके, थैंक यू.